Very good morning, students. So in today's video we are going to cover fourth chapter of your civics NCERT book. I hope you all are having your book along with you so that we can read out the important paragraphs from this and mark the things which are very important in this chapter. So let's begin with the chapter. This chapter talks about the key elements of a democratic government. So if you can recall, in our last chapter we have studied what the types of government. अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने लास्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की एंड अरिस्टोक्रेसी और हमने जो लास्ट था डिक्टेटरशिप के बारे में आपको मैंने बताया था कि दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स एंड वी हैव डिस्कस, यू ऑल वेरी वेल नो दैट इन इंडिया वी हैव representative democratic government. What is a democratic government? A government which is like selected by the elected, in which the government is elected by the people of the country, citizens of the country, and the government is answerable. It's working for the welfare of the people and it is answerable to the citizens of the country. So this is democratic country. We have read about the types of governments and a bit about the democratic government in the last chapter. Now we will be focusing on the key elements of the democratic government in this particular chapter. और जब हम उसके elements को समझेंगे, जो कि मैंने बोर्ड पे राइट डाउन भी किए हैं, इस सेक्शन के अंदर हमें कवर करना है लाइक की एलिमेंट्स क्या होते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है जिसके अंदर लोग सिटीजन जो है उनका पार्टिसिपेशन है. पार्टिसिपेशन इन द मीनिंग लाइक इंडिया के अंदर जैसे आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. दैट मीन्स देयर इज नो डायरेक्ट डे टू डे वर्क citizens are doing in the parliament house or in the working of the government, but they have elected some representatives who are there, who forms the government, who makes law, who implement the laws, and इस तरह से जो इनडायरेक्टली जो सिटीजन्स हैं इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं. देन इतना ह्यूज कंट्री है, इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, वेरियस कल्चर्स एंड डाइवर्सिटी है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है. उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना ही एक एलिमेंट है. पीस बनाए रखना देश के अंदर, ये भी एक एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. देन वी विल टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस ऑल्सो, बट वी विल टेक these topics one on one. So to your chapter begin with the story of South Africa. That is a country which have several races. बहुत ही ज्यादा वहाँ पर लोग रहते थे. वहाँ पर काले और गोरे का बहुत भेदभाव था और जो इंडियंस भी थे वो भी वहाँ पर एज ट्रेडर या लेबरर्स जो थे रहते थे. तो द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस दैट माया Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. So here, please underline this thing. Apartheid means separation on the basis of race. तो यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है. स्टोरी के अंदर क्या बताया गया कि एक लड़की अपनी मदर के ओल्ड बॉक्सेस जो है उनको क्लीन करने में हेल्प कर रही है. सडनली शी केम अक्रॉस अ एल्बम, स्क्रैप बुक काइंड ऑफ थिंग, और उसमें वो देखती है कि बहुत सारे पिक्चर्स और न्यूज आर्टिकल रिलेटेड हैं. तो वो हेक्टर पेटरसन के नाम से एक लड़के की होती है और उसकी मदर बताती है कि ही वाज शॉट बाय पुलिस. बट नाउ पुलिस, व्हेन इट कम्स पुलिस मीन्स समथिंग व्हिच इज देयर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. हाउ कैन अ पुलिस शॉट डाउन? Was he a like goon or something? ऐसा क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है. तो उसकी मदर उसको बताती है कि जो साउथ अफ्रीका था वहां पर जो था आपका अपार्थेड की पॉलिसी थी, दैट इज सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि आप गोरे हैं या काले हैं या इंडियन है, इस बेस पे उनको रंग भेद या आप जातिवाद कह लीजिए उसकी वजह से उनको
कैटेगराइज कर दिया जाता था, और उनके साथ जो है एक डिवीजन थी बिटवीन ब्लैक, वाइट एंड इंडियन और कलर्ड रेस। इंडियंस को कलर्ड रेस बोलते हैं। तो उनके बीच में एक भेदभाव था, लाइक जो फैसिलिटीज या जो प्रिविलेजेस वाइट क्लास पीपल को मिले हुए थे वो बाकी लोगों को नहीं मिले जाते थे, और बहुत ही ज्यादा उनके साथ इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर था, जिसकी वजह से माया couldn't believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. She told Maya that in those days hospitals were separate and so were ambulance. Even the ambulance which were meant for white people would always be well equipped, while one meant for black was not. There was separate trains and bus. Even the bus stops were different for black and white. यानी देख रहे हैं कि सिर्फ आपके स्किन का कलर कैसा है इस वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आपको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है, आपको आपके ऊपर एक मतलब आपको हीन दृष्टि से देखा जाता है। यानी हीन दृष्टि से देखा जाना मतलब आपको मतलब यू आर लुक लाइक इफ यू आर अ डिस्कस्टिंग काइंड ऑफ थिंग। सो नॉन वाइट्स जो थे उनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव था। दे वर नॉट लाइक अलाउड टू वोट, नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे, बेस्ट लैंड्स नहीं खरीद सकते थे। तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होते थे। और सुवाचो जो था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप थी, हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था, वो और उसके क्लासमेट्स ने ज्वाइन किया था इस प्रोटेस्ट को। द अफ्रीकन लैंग्वेज इन द स्कूल, दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ द वाइट स्पोक। Hector and other school students were being forced to learn their language, but they wanted to learn their own language, Zulu. तो नेटिव्स की जो लैंग्वेज थी, ब्लैक्स की जो लैंग्वेज थी वहां पर वो जूलू थी, और वाइट जो थे वो अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे, और वही फोर्स किया जा रहा था उनको स्कूल में। तो द अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर मर्सिलसली एंड शॉट एट द क्राउड, और उसमें से एक बुलेट जो थी हेक्टर को लग गई थी। और ये जो इंसिडेंस है वो 16 जून 1976 का है। तो आपको पता लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही रिसेंट टाइम की बात है, जबकि साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना और जब उसके अंदर सभी रेसेस को इक्वल कंसिडर किया। दैट वाज द ईयर 1994। सो इट वाज ऑफ समथिंग विच हैज हैपेंड इन रिसेंट पास्ट। और द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक ग्रुप था लोगों का जो कि इस भेदभाव की नीति के खिलाफ, इस अपार्थाइड के खिलाफ जो थे वो लड़ाई कर रहे थे, और नेल्सन मंडेला जो थे वो उनके लीडर थे। और 1994 में साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस आर कंसिडर इक्वल। प्लीज मार्क दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी 1 मार्क क्वेश्चन कैन कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। I'm talking about paragraph 2 on page number 36. Yeah. First you have like mark this paragraph as important. Next. So this was a thing. This was in this particular paragraph what we are trying to understand. We are trying to understand that there was a discrimination in many countries who are being colonized by the Britishers or Europeans. So वहाँ का जो natives थे या वहाँ पर जिनको हीन समझा जाता था उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, राइट। और जब ये डेमोक्रेटिक आपने लास्ट लाइन जैसे पढ़ी उसमें मैंने बोला जब वो 1994 में साउथ अफ्रीका जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया तो सभी रेसेस को इक्वल कंसिडर किया गया। यानी कि यहाँ से आप एक एलिमेंट देख सकते हो, इक्वालिटी की बेसिक एलिमेंट है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, लॉ के बिफोर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली आप सब इक्वल हो। So let's begin with the first key element, that is participation. Let us now understand. You know very well ki how the people participate. They participate in a democratic government because they select their leaders by casting vote for them. वोट देने की प्रक्रिया जो है, अपने नेता को चुनने की प्रक्रिया जो है वो ही पार्टिसिपेशन है। एक्चुअली इसी तरह से लोग जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है चूज करते हैं। लेट्स रीड दिस आउट। व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? यू हैव ऑलरेडी read in the previous chapter that people, please underline, people make the decisions in a democracy. पीपल, जनता डिसीजन बना रही है, रोज पार्लियामेंट में हाउस में बैठ के डिसीजन नहीं बना रही। उन्होंने वोटिंग के जरिए अपने जो नेता हैं उनको चुन रखा है जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव्स
लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं. सो दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेज नंबर 36, लास्ट पैराग्राफ अंडर द सब टाइटल ऑफ पार्टिसिपेशन. People make the decisions in a democracy. Through voting in elections, people elect leaders to represent them. These representatives take decision on the behalf of people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people. अब जो नेता चुने गए हैं उनको उनका ये काम है कि उनको जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके लिए उनको वर्क करना है. उनके जो विचार है, उनके जो डिमांड्स है या जो उनकी एक्सेप्टेशंस हैं, दे हैव टू फुलफिल देम. अदरवाइज व्हाट विल happen, because in a democracy there is a span of period for which these representatives can work as a government. Okay, so that span, after that span again there are elections. So if any representative is not working up to the mark, he or she can be replaced. So और एक चीज और यहाँ पर मैं add on करना चाहूंगी कि if these representatives prove like are not up to the mark, they can be removed. That government can be removed by the people of the country. They have that authority कि अगर उनके against उन्होंने choose भी कर लिया और next election 5 साल बाद होने हैं और 1 साल बाद ही लोगों को लगता है कि नहीं ये तो हमसे गलत डिसीजन हो गया या ये रिप्रेजेंटेटिव ढंग से काम नहीं कर रही, ये गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही, तो उनके पास पावर होती है कि वो उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने के लिए प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं. और ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि वो गवर्नमेंट जो है इलेक्शन से पहले ही डिसॉल्व कर दी जाए. तो पावर लोगों के पास है. हाँ, उन्होंने खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट डे टू डे एक्टिविटी में ना होकर अपना पार्टिसिपेशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं. सो आई होप, आई ट्रस्ट दैट दिस एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स और द नेटिव्स ऑफ द कंट्री, इज नाउ क्लियर. So all governments are elected for fixed period. As I have told you, in our country this particular period is for 5 years. In India this period is 5 years. Once elected, government can stay in power only for that period. If they want to continue to be their power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular elections. So that is why regular elections are very very important in our country, to check and to, like, if the people want to make any change, they can go through that. तो इसलिए रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है. Okay, so let's now move ahead. That is other ways of participating. एक तो ये हो गया कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेंगे, तो पार्टिसिपेशन हो रहा है. क्या कोई और तरीका भी है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन का? इलेक्शन जो है जर्नली 5 साल के लिए होते हैं. Beside voting, there are other ways of participating in the process of government. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing when required. ऐसा ही एक इंसिडेंस वो दिखा रहे हैं. In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdraw the increase. The government had to change its decision because it is responsible to the people. अब सपोज अगर वो रिवर्ट बैक नहीं करते अपना डिसीजन, तो उसको वो गवर्नमेंट जो है वो गिर भी सकती थी. तो लोगों को अगर यही नहीं है कि अपने नेताओं के थ्रू ही बात रख सकते हैं. प्रोटेस्ट होते हैं, रैलीज होती हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स होते हैं, बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे लोग अपने व्यूज जो हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट को ये अंडरस्टैंड करा सकते हैं कि भाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ योर्स. वी either want this to be withdrawn or we want a new alternative for this particular thing. उसके लिए लोग धरने देते हैं, रैलीज करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स करते हैं. तो जितने भी थिंग्स जो हैं वो अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड. एंड देन वी हैव मीडिया. नाउ डेज मीडिया इज डूइंग सो मच
in the field of bringing up the things and resolving the matter, questioning the government. You all watch TV, you all are very well aware that every moment some new news is being flashing on your TV screen, and a detailed team is working behind that and they are bringing out everything. So मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो गया है. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो है ये गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन में, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट भी जो है वो बिल्कुल आप पढ़ेंगे आगे 7th में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट भी अपने लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए प्रेस का या मीडिया का यूज करती है. ठीक है. While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all section of people are actually able to do so. Right? Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its working. Members of the minority community, Dalits, Adivasi, women and others are often able to participate in this manner. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. Obviously, अगर हम आप किसी भी चीज को तभी फ्रूटफुल रहती है, तभी वो सक्सेसफुल रहती है जब उसके जो पार्टिसिपेंट है वो उसमें एक्टिवली इंटरेस्टेड हो. जहाँ इंटरेस्ट गया वहीं वो चीज खत्म होती चली जाती है. तो ऐसा ही है कि कोई भी देश की गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी तक स्ट्रांग रहती है जब तक कि लोगों का पार्टिसिपेशन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली होता है. So the next time you see a rally winding through the streets of your cities and towns or villages, we should pause and find out what the rally is about, who is participating in it, and why are they protesting and what are they protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. Now let's come to conflicts and resolve. Before resolving conflicts, we first should understand what are conflicts. कॉन्फ्लिक्ट होते क्या है? मतभेद जब आपके विचार नहीं मिलते तो दैट इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट. Conflict occurs when people of different cultures, religions, reasons or economic background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminating against. People may use violent means to settle their differences. This led to fear and tension among others living in the area. The government is responsible for help to resolve conflict. Resolve जैसे घर में आपका किसी बात पे मतभेद हो जाती है, देखा है कभी? आप और आपके सिबलिंग्स में यू और योर सिस्टर, यू और योर ब्रदर किसी बात पे मतलब छोटी सी बात है कि टीवी का कौन सा चैनल चलेगा, उस पे ही कई बार घर में जो है मतभेद हो जाते हैं भाई बहनों के बीच में या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में. तो उसको रिजॉल्व करते हैं ना. मान लीजिए आप और आपके ब्रदर के बीच में, योर ब्रदर इज सेइंग नो आई वांट टू वॉच स्पोर्ट्स चैनल दिस मोमेंट एंड यू आर इंटरेस्टेड टू गो अहेड विद द न्यूज. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. एंड अगर एक दूसरे की बात नहीं मानते आप लोग तो वो बात झगड़े में भी पहुंच जाती है और कभी कभी तो हम वायलेंट भी हो जाते हैं, हाथ पैर भी यूज करने लग जाते हैं. देन मम्मी या पापा आके हमको कंट्रोल करते हैं, हमारे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So in such a populous country where the population is so much high and moreover there is so much diversity present in our country, like रिलीजन अलग, रीजन्स अलग, लैंग्वेज अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग, सब कुछ अलग, तो विचारों में मतभेद होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ऑब्वियस है. सो उसको रिजॉल्व करना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक की एलिमेंट है. देश के अंदर शांति को बनाए रखना, किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसकी टेक केयर करना भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि उसका पार्ट है. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. Let us read about some of the conflict in our society and the role of government in resolving them. Page number 39 I am reading upon. फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितनी भी बातें ये येलो बॉक्स में या कलर्ड बॉक्स में दी होती है ना, काइंडली पे अटेंशन ऑन दोज क्वेश्चंस और दोज फैक्ट बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच दे पुट specifically in a different color of dialog box to attract your attention. So what this dialog box on page number 39 reads, let's go through that. The Indian Constitution lays down the basic rules and laws that have to be followed by everyone. These laws are for both
the government and the people. Conflicts and differences have to be resolved according to these laws. We have to read more about this in later classes. तो एक बात अपने दिमाग में आप इसके बारे में बहुत हायर क्लासेस तक पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपने माइंड में ये सेट कर दीजिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, जिसका हमारी कंट्री ऐसी है जिसका लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन बुक है. बुक में क्या हर चीज से रिलेटेड लॉ लिखे हुए. अब आप चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आप एक आम ऑर्डिनरी सिटीजन हो, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकते. आपको उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी के दायरे में उन्हीं चीजों को फॉलो करके ही आप जो है अपना कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, कुछ भी है, उसको रिजॉल्व करेंगे या उसी के अकॉर्डिंगली आप करेंगे. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लाइक हैविंग बेसिक रूल्स और लॉज विच हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक स्वीपर हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, सबको वो रूल्स एबेट करने हैं. ओके, सो कुछ मैं यहाँ पर आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट, कैसे मतभेद उठते हैं और फिर गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व कैसे करती है. रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट. क्या होता है, कई बार कई धार्मिक जो गेट टुगेदर प्रोसेशंस होते हैं, जिनको हम नगर कीर्तन कई बार या जलसे या कोई झांकियां बोलते हैं, वो निकलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल द रूट अ प्रोसेशन लेड to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting a representative of concerned community to meet and try and arrive at a solution. At times there is a fear that violence may erupt. Violence मतलब हिंसा हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, with people throwing stones or trying to disturb the procession. The police is responsible for ensuring that violence doesn't take place. आप कभी भी नोटिस करना, किसी भी तरह का प्रोसेशन होता है तो आप देखोगे कि पुलिस जो है वहां पर बहुत ही मात्रा में मौजूद रहती है. क्यों? क्योंकि उनको संभावना होती है कि कहीं कोई दंगा फसाद ना हो जाए, कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो प्रोसेशन कर रहे हैं और उससे जो भी अपोजिट रिलीजन के लोग हैं या अपोजिट विचारधारा के लोग हैं, वो कोई ऑब्स्टिकल ना डालें, इसके लिए वो लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में तैनात रहती है पुलिस में. लाइक रिवर टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट. और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बहुत टाइम से, कावेरी नदी का, जो कि डिस्प्यूट था बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु. अब एक नदी है, दो राज्यों से निकल रही है, तो राज्यों की सरकारों के अंदर लड़ाई थी कि कितना पानी, कब कहाँ पानी बारिश में छोड़ देते हैं, गर्मी के मौसम में देते नहीं है. इट वॉज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था. यू शुड स्टडी दिस एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे लॉ ऑफ कोर्ट ने इसमें इंटरवेन करके क्या डिसीजन लिया. सो द स्टोरी वॉज लाइक दिस कि अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट. रिवर एक नदी जो होती है उसका उद्गम स्थान, उसका सोर्स किसी एक स्टेट में हो सकता है, जबकि वो बह के दूसरे स्टेट में जा सकती है और तीसरी स्टेट को क्रॉस करके वो समुद्र में या किसी भी ऐसी वाटर बॉडी में मिल सकती है. द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु. द वाटर स्टोर्ड इन कृष्ण सागर Raja Sagar Dam in Karnataka. One mark question, where is Krishna Raja Sagar Dam located? It is located in Karnataka. किस लिए यूज होता है? इज यूज फॉर irrigating a number of districts and for meeting the need of the city of Bangalore. The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that region. यानी कि दो बांध उसी नदी के पानी पे बने हुए हैं और दोनों अलग अलग जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. अब एक कॉन्फ्लिक्ट क्या उनके बीच में जो एक विवाद था वो ये हुआ, both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled if the water is released from the upstream one located in Karnataka. अगर कर्नाटका सरकार पानी छोड़ेगी वहां से डैम से, तभी वो तमिलनाडु की डैम में आएगा और तभी वो अपने आसपास के जो डेल्टा रीजन्स है वहां पर इरिगेशन कर सकती है. Therefore, both states cannot get as much water as they need for people in their state. This led to conflict. The central government has to step in and to see that a fair distribution is worked out for both states. क्योंकि अलग अलग स्टेट है, दोनों का अपना अपना गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ा कि और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पड़ा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी पानी की.
Moving ahead, now we are left with two more elements of the democratic government, that is equality and justice. One of the key idea of a democratic government is its commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि समानता और न्याय, अगर आप सबको बराबर रखोगे तो आप सबके साथ न्याय कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ मतभेद करते हो तो आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनसेपरेबल है। जहां पर इक्वालिटी होगी वहां पर जस्टिस भी होगा, जहां पर इनइक्वालिटी होगी वहां पर जस्टिस जो है नहीं होगा। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर पेयर्स। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. Justice तभी हो सकता है जब सब लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटी, हर चीज में बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब लिखा गया तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए। तो ऐसे सोसाइटी के हिस्से जहाँ जो लगता है कि जहाँ पर इनइक्वालिटी है या जो वो थोड़ा बहुत पिछड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से, लॉ से उनको हेल्प करती है टू कम एट द पार। ठीक है, लड़के और लड़की का भेदभाव, ठीक है, गर्ल चाइल्ड पिछड़ा हुआ था या गर्ल चाइल्ड को नहीं पसंद किया जाता था या गर्ल चाइल्ड के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। इस वजह से इस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई, बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस दिए जिसकी वजह से लोग जो पहले मानसिकता थी लड़कियों को बोझ मानने की या प्रेशर मानने की, वो चीज जो है वो हटा दी है। आप लोगों को सुनने में बहुत ऑड लगता होगा ना, शायद यू आर इन दैट एज ग्रुप जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लड़कियों को बोझ समझा जाता है। बट बिलीव मी, स्टिल इन दिस 21st सेंचुरी इन आवर कंट्री वी आर स्टिल हैविंग दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द जेंडर। दिस इज कॉल्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ लड़कियों को आज भी बोझ समझा जाता है। यानी कि अब ये बोझ इन द सेंस कि अब इनको पढ़ाओ, इनको बड़ा करो, फिर इनकी शादी पे खर्चा करो और ये तो फिर दूसरे घर चली जाएंगी, तो फिर व्हाई वी हैव टू स्पेंड ऑल दिस थिंग्स। हम लोगों को आज बच्चों को स्पेशली समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि जो जनरेशन्स थी उनको एजुकेशन देके गवर्नमेंट ने या आपकी जनरेशन से बड़ी वाली जनरेशन को एजुकेशन देकर उनका माइंडसेट ब्रॉड कर दिया गया है कि अब वो बेटा और बेटी में फर्क नहीं करते। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए जो आज की जनरेशन आप फील कर रहे हो ना कि आपके पेरेंट्स के अंदर ये बायस्डनेस नहीं है कि ओ दिस इज अ गर्ल और ही इज अ गर्ल, सॉरी ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल, तो वो एजुकेशन ने बहुत ज्यादा मैटर किया है। ब्रॉड माइंडनेस वो कहाँ से आई है? सोसाइटी के अंदर ये जो इक्वालिटी और जस्टिस गवर्नमेंट कोशिश करती है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। ओके, so last paragraph we will read it out quickly. This means that society doesn't value the girl and boy child equally and there is unjust. In this context, the government step in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fee for girls might be waived off or lowered in government schools or colleges. So, एक तरीका बताया कि कैसे लड़कियों के ऊपर क्यों स्पेंड करें, इन्होंने तो दूसरे घर चले जाना है शादी करके, तो गवर्नमेंट ने कहा लो इनकी एजुकेशन ही फ्री है, आप इनको पढ़ाओ तो सही। क्योंकि जितनी एजुकेशन पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई सिर्फ नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट पढ़ाई इन द सेंस ऑफ डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट पढ़ाई इन द रियल सेंस ऑफ लर्निंग। जब लोगों की मानसिकता को सुधारा जाएगा तो ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं, ये सारी की सारी जो हो जाएंगी क्लियर हो जाएगी। So we have covered the whole chapter. I trust that after watching this video and after giving thorough reading to your NCERT textbook, आपके बहुत सारे concept clear हो जाएंगे. Rest we will be taking up this chapter in the upcoming live class session. So whatever doubts you have, be ready with that, and we will be discussing everything in detail. Bye for now. See you in the next lecture.